اللہ تبارک و تعالی کا اور فرشتوں کا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ سورہ احزاب کی 56 نمبر آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے ایمان لانے والوں کو۔ جو انسان ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 408 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی واحدہ، جو انسان مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، پھر میرے بھائیوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو پڑھنا ہوگا۔ صحیح الجامع کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی واحدہ، جو انسان ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشر صلوات، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، وحط عنہ 10 خطیات، اور اس کے 10 گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں، ورفع 10 درجات، اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، 10 درجے اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آپ کے گناہ معاف ہوں، آپ کے درجات بلند ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود کو پڑھنا ہوگا۔ چوتھی اہمیت میرے بھائیوں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں درود و سلام کی۔ درود ایسی چیز ہے اس سے دعا کو قبول کیا جاتا ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کی 553 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نماز سے فارغ ہوا، فلما جلست بدأت بالثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، ثم دعوت لنفسی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سل تعطى سل تعطى، پھر میں نے اپنے لیے دعا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، فرمانے لگے سوال کرو اللہ سے تمہیں عطا کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو بیان کیا، پھر مجھ پر درود بھیجا، اب جو جی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ پانچویں اہمیت درود و سلام کی۔ درود و سلام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ جو انسان
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद को पढ़ता है, ये दुरूद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया जाता है। सुनन नबी दाऊद की 2042 नंबर हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, वला तजअलू कब्री ईदा, और ना मेरी कब्र पर मेला गा बनाना, मेरी कब्र को मेला ना बनाना। वसल्लु अलैया फ़इन्ना सलातकुम तबलुगुनी हैज़ु कुंतुम, और तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, यकीनन तुम्हारा दुरूद मुझको पहुँचाया जाता है। जैसी भी हालत में तुम पढ़ो, जहाँ भी पढ़ो, जिस वक़्त भी पढ़ो, तुम्हारा दुरूद जो तुम दुरूद व सलाम पढ़ते हो वो मुझ तक पहुँचाया जाता है। सामिन मोहतरम, दुरूद व सलाम की तो इतनी अहमियत है। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान दुरूद पढ़ता है मैं उसका जवाब देता हूँ। इस बात की दलील सुनन नबी दाऊद की 2041 नंबर हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दहुल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। जब कोई इंसान मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला मेरी रूह को वापस लुटा देते हैं और मैं फिर उस दुरूद व सलाम का जवाब देता हूँ। सामीन मोहतरम, देखिए कितनी अहमियत है दुरूद व सलाम की। जो इंसान दुरूद पढ़ता है नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह तबारक व तआला इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को वापस लुटाते हैं इस वजह से ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी के सलाम का जवाब दे सके। अब इसकी कैफियत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, किसी इंसान को इस चीज़ का इदराक नहीं हो सकता। सातवीं अहमियत मेरे भाइयों दुरूद व सलाम की जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है, एक तो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब देना, बस यही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला भी जवाब देते हैं उस आदमी का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है। जैसा कि सुनन नसाई की 1282 नंबर हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द युबल्लिगूना मिन उम्मति सलाम। बेशक अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों की ड्यूटी है। कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जिनकी अल्लाह तबारक व तआला ने ड्यूटी लगाई हुई है, वो दुरूद व सलाम को लेकर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते हैं। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम को सुनते हैं उसका जवाब देते हैं। ये कुछ फरिश्ते हैं जिनकी अल्लाह तबारक व तआला ने ड्यूटी लगाई हुई है। अगर आप भी सलाम भेजना चाहते हैं इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरे भाइयों ये दुआ है, आप भेजेंगे तो फरिश्ते आपका सलाम लेकर जाएंगे। आठवीं अहमियत सामिन मोहतरम दुरूद सलाम की जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि जितना आप दुरूद पढ़ेंगे फरिश्ते उतनी ही आपके लिए दुआएं करेंगे। इस बात की दलील क्या है? मुस्नद अहमद की 16680 नंबर हदीस है। सैयदना आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन, जो इंसान मुझ पर दुरूद पढ़ता है, लम तज़लिल मलाइकतु तुसल्ली अलैहि मा सल्ला अलैहि फलयुकिल अब्दु मिन ज़ालिक औ लियक्सुर। जितनी देर तक इंसान
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता रहता है, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतनी देर तक फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके लिए फरिश्ते दुआएं करें, जितनी देर तक आप दुरूद पढ़ेंगे उतनी देर तक फरिश्ते आपके लिए दुआएं करते रहेंगे। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में फरमाया अब आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं कि फरिश्ते आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें फिर आपको मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ना होगा। नौवीं अहमियत मेरे भाइयों दुरूद व सलाम की, जो इंसान दुरूद पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर देते हैं। सुनन तिर्मिज़ी की 6357 नंबर हदीस है, सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी आकर सवाल करता है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर बहुत दुरूद पढ़ता हूँ। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगा कि मैं कितना दुरूद पढ़ूँ। माशिता, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया जितना दिल चाहता है आप मुझ पर दुरूद पढ़े। फिर वो सवाल करता है क्या चौथा हिस्सा दुरूद पढ़ूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया माशिता फ़इन ज़िदता फ़हुवा खैरुल लका, अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर है। फिर वो कहता आधा हिस्सा। फिर आखिर में जब उसने कहा अब मैं आप पर दुरूद ही पढ़ता रहूँगा, उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदन तुकफ़ा हम्मक व युग़फ़रु लका ज़ंबुक, अब ये तेरे लिए काफ़ी है, इससे आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आपके तमाम गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देगा। आप भी चाहते हैं आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो, आपको इन परेशानियों से निजात मिले, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम को पढ़ना होगा। 10वीं अहमियत दुरूद व सलाम की मेरे भाइयों, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो इंसान दुनिया के अंदर रहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ेगा, क़यामत का दिन होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स के लिए सिफारिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपकी सिफारिश हो फिर सुनिए ये हदीस सहीहुल जामे की हदीस है। सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अलैहि हीना युस्बिहु अशरन, जो इंसान सुबह के वक़्त 10 मरतबा दुरूद पढ़ता है, व हीना युमसी अशरन अदरकतहु शफाअती यौमल क़ियामा, और शाम को 10 मरतबा दुरूद पढ़ता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन मैं उस आदमी की सिफारिश करूँगा। अगर आप भी चाहते हैं आपकी सिफारिश हो फिर आप भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ा करें। 11वीं अहमियत मेरे भाइयों दुरूद की, जो इंसान ये चाहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिले क़यामत वाले दिन, वो दुरूद शरीफ को पढ़ा करे। सुनन तिर्मिज़ी की सही हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलन नासि बि यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैहि सलाह, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा करीब इंसान वो मेरे होगा जो मुझ पर कसरत के साथ दुरूद को पढ़ता रहा होगा। अगर आप चाहते हैं क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो फिर दुरूद शरीफ को पढ़ा करो।